Hello dear students, in this video we are going to discuss the hard and important point of electrochemistry chapter, important formulas and revision of the chapter. Dear students, as you know very well, this chapter having 5 to 6 marks in board exam. So which are important topic of the chapter, that is Faraday's law, Kohlraasch law, degree of dissociation, Nernst equation, EMF of the cell, delta G value, delta G equal to NFE, batteries and reactions on anode and cathode, cell reactions and fuel cell. These all are important points of the chapter. Okay students, the numericals based are Faraday's law, Kohlraasch law, Nernst equation and EMF of the cell. These are hard point of the chapter. इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं. चैप्टर आपका 5 to 6 मार्क का रहता है. अगर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये सब टॉपिक आपको लर्न करने हैं. विथ लॉ, सेल रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, 1 to 2 मार्क्स. ये हमेशा आप देखेंगे प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल, सेल पे होने वाले रिएक्शंस हमेशा पूछे जाते हैं. एंड व्हाट आर इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द चैप्टर? Faraday first law, Faraday second law. Faraday first law, W equal to ZIT or W equal to ITE upon 96,500. First law. Second law, W1 upon W2 equal to E1 upon E2. Okay students, Kohlraasch law, sum of molar conductivity equal to individual ions. EMF of the cell, E cell equal to E oxidation plus E reduction. Lambda m equal to kappa into 1000 upon m. C equal to 1 upon R, kappa equal to C into L upon A, means a formula of conductivity, resistivity, specific conductivity and molar conductivity. Okay students, and also very important formula, degree of dissociation, that is denoted by alpha. Alpha equal to lambda m upon lambda naught m and alpha equal to lambda E upon lambda naught E. Okay students, and also K equal to C alpha square upon 1 minus alpha, related with degree of dissociation. Nernst equation equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log 10 Q at 25 degrees Celsius minus 0.059 upon N log 2 to the base 10 Q. This is Nernst equation, and also a very important formula of the chapter, delta G equal to minus NFE. These are important formula of the chapter. Now revision the important points of the chapter. So first of all, as we learn in the chapter, electrolyte, the substance which dissociate on dissolving with solvent like any acid or base. Electrolytic cell, the cell which converted electrical energy into chemical energy. Faraday's first law, as we learn, Faraday's first law means electrolysis is decomposition of electrolyte in solution or melt by electric current, that is W equal to IT upon 96,500, where I current, T time and E chemical equivalent. Second law, W1 upon W2 equal to E1 upon E2. Okay students, next, the relation of conductance, resistance C equal to 1 upon R, or resistance C equal to conductance, kappa equal to C into L upon A. L, distance between two electrodes. Lambda m equal to kappa into 1000 upon m. A equal to area of electrodes. Lambda equal to kappa into 1000 upon m. Kappa, what is kappa here? The specific conductance. Lambda m, molar conductance. Lambda E, equivalent conductance. M, molarity. N, normality. And these are physical quantity. R की यूनिट क्या है? ओम. C, ओम इनवर्स. kappa, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. लैम्डा एम का ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. लैम्डा ई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स. नेक्स्ट, Kohlraasch law, as we know, at infinite dilution each ion contribute a definite conductance to total conductance of the electrolyte. अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका टोटल कंडक्टेंस क्या होता है? इंडिविजुअल आयंस का सम होता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड आपका है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है.
तो K इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. सो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन C. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी लेमडा m अपॉन लेमडा नॉट m एंड अल्फा इक्वल टू लेमडा E इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन लेमडा नॉट E. नेक्स्ट इक्वेशन आपको बताया गया है. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 अपॉन RT, 2.303 RT अपॉन NF log 10 Q 25 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल टू E नॉट 0.0591 अपॉन N log 10 Q. ओके स्टूडेंट्स, Q इक्वल टू क्या है, जिंक कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर. डैनियल सेल के लिए आप पढ़े हैं. E सेल पोटेंशियल है, E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए नोड. फार्मूला तब क्या क्या यहाँ बन जाता था, EmN प्लस अपॉन एम इक्वल टू E नॉट EmN प्लस अपॉन एम माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस. EmN प्लस अपॉन स्लैश एम का वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. यहाँ वर्क डन बाई सेल क्या होता है, NFE होता है. मैक्सिमम वर्क फ्रॉम सेल इक्वल टू NF E नॉट डेल्टा G की वैल्यू माइनस NFE डेल्टा G नॉट इक्वल टू NF E नॉट. G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है यहाँ. ओके स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिडॉक्स प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, Kc इक्वल टू एंटी लॉग N E नॉट अपॉन 0.059. E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर important topics. Now cells and batteries, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, सेल्स बैटरीज क्या है, कॉमर्शियल सेल्स को बैटरीज बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स. प्राइमरी सेल्स विच डू नॉट रिचार्ज अगेन, सेकेंडरी रिचार्जेबल. प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या है, ड्राई सेल हैं, लैग्रैंज सेल हैं. एनोड पर इसमें क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है. देखिए जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम का रिडक्शन हुआ है. ये आपका लैग्रैंज सेल का फिगर है. मरकरी सेल जिसको बटन सेल भी बोलते हैं, ये बटन सेल का फिगर यहाँ है. एनोड पर यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है रिएक्शन. एनोड पर क्या होता है, जिंक का OH माइनस के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है. कैथोड पर क्या होगा, Hg आपका है मरकरी ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके रिड्यूस हो रहा है. ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, जिंक अमलगम ZnHg HgO से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और Hg बनाता है. यहाँ पर सेल पोटेंशियल 135 वोल्ट रहता है. ओके स्टूडेंट्स, और हमेशा प्राइमरी बैटरी की लैग्रैंज सेल 1.5 वोल्ट की पोटेंशियल देती है. सेकेंडरी बैटरी क्या है आपकी, आपको बताया गया वो बैटरीज जो रिचार्जेबल होती हैं, जिसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं. दैट इज सेकेंडरी बैटरी. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरीज, लेड स्टोरेज एंड निकिल कैडमियम. लेड स्टोरेज की बात करते हैं, एनोड लेड रहता है, कैथोड लेड ऑक्साइड रहता है. इलेक्ट्रोलाइट 38% H2SO4 सोल्यूशन रहता है. एनोड पर क्या होता है, लेड सल्फेट से रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाता है. कैथोड पर लेड ऑक्साइड सल्फेट और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके लेड सल्फेट और वाटर बनाता है. ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए क्या है, लेड का PbO2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, फिगर है. आपको नोट्स में इससे भी इजी फिगर दिया गया है और वीडियो में आपको मैंने समझाया है. ये निकिल कैडमियम सेल देख लीजिए. निकिल कैडमियम सेल में क्या होता है, एनोड कैडमियम का बना होता है. इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है. सेल रिएक्शंस, कैथोड पर ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है. एनोड पर हाइड्रोजन OH के साथ H2O बना रहा है. ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए. सॉरी, ये आपका देखिए फ्यूल सेल का है. निकिल कैडमियम में मैंने यहाँ आपको बताया है, ये कैडमियम का निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैडमियम ऑक्साइड और निकिल हाइड्रोक्साइड देता है. ओके स्टूडेंट्स, फ्यूल सेल आपको बताया गया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यूज से H2O बनाया जाता है और मोर अमाउंट में एनर्जी जो निकलती है उसका यूज़ हम फ्यूल के रूप में करते हैं, इसलिए इसको फ्यूल सेल बोलते हैं. इसमें कैथोड पर क्या होता है, H2O का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है और OH माइनस बनता है. एनोड पर देखिए हाइड्रोजन OH से रिएक्शन करके H2O बनाता है.
ओवरऑल रिएक्शन H2O2 के साथ H2O बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्यूल सेल का आपका फिगर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दीज आर रिवीजन ऑफ द चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।